احمد چنوئی صاحب نے مجھے آج کی فاؤنڈیشن ڈے کے لیے انوائٹ کیا. پچھلے سال بھی انہوں نے مجھے بشیر جان محمد صاحب جو میرے والد صاحب کے کلاس فیلو تھے کامرس کالج میں اور ان کے بورڈ آف ٹرسٹیز میں بھی ہیں, انہوں نے پچھلے سال مجھے انوائٹ کیا تھا. میں کیونکہ آفیشیل کمٹمنٹس پہ تھا تو میں پچھلے سال نہیں آ سکا. جب مجھ سے چنوئی صاحب نے اس سال کہا تو میں نے ان کو کہا کہ میں ضرور آؤں گا. مجھے یاد ہے وہ دن میں گریجویٹ کر چکا تھا 1986 میں. کامرس کالج سے اس کا کیمپس یہاں نہیں تھا, اس کا کیمپس جو ہے وہ پال کانٹیننٹل کے سامنے اس کا اوریجنل کیمپس جس میں ہم پڑھے. تو یہ چند دوست جو کہ کامکس جس کا بورڈ آف ٹرسٹیز جس کو ہم کہتے ہیں آج, مجھے یاد ہے کہ وہ عارف تیلی صاحب اور ناصر بخاری صاحب اور عرفان ندیم صاحب بہت ایکٹیو تھے اولڈ بوائز کامرس کالج ایسوسیشن میں. تو میں نے آج یہ پراکٹر کا جو ہے وہ جب آپ لوگوں کو پہلے دیکھا بدل تو مجھے یاد آیا کہ میں بھی چیف پراکٹر تھا کامرس کالج کا. وہ brought back memories and جو یہ کانسیپٹ بنا ان 8 دوستوں کا, انہوں نے اس میں اسد اللہ خان صاحب بھی تھے ہمارے گھر پہ. ان سب نے اکٹھے ہو کے کہا کہ ہم جو اولڈ بوائز ہیں ایک ٹرسٹ بنا کے زمین خریدتے ہیں اور ایک جو ہے وہ بنیاد رکھتے ہیں ایک نئی انسٹیٹیوشن کی جو کہ کامکس کے ساتھ ہی جو ہے جس کو ہم اولڈ بوائز اس کو فنڈ کریں اور ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنے جس پہ جو ہے یہ ایلومنائی اس پہ فخر کر سکیں. تو ان 8 دوستوں نے یہ کانسیپٹ جس میں میرے والد صاحب بھی تھے سینیٹر اعجاز, انہوں نے مل کے اس کا کانسیپٹ بنایا, ویژن بنایا. میں آج تک یہاں نہیں آ سکا. میں مائگریٹ کر گیا 1990 میں لاہور. آئی واز سینٹ ٹو پنجاب ایز دی ایلڈسٹ فرام دا نیکسٹ جنریشن کیونکہ کراچی کے حالات خراب تھے. اب تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لاہور چلے جائیں. آئی واز 24 years old. So I had to start new life in Lahore. I had no college friends, so when I look at you and I looked at all of them, there were certain old men who were junior to me I met today, and certain young men who were senior to me which I met them, and I could transform, and I believe you understand what I am saying. This journey of this college for last 31 years جب مجھ سے شیئر کی انہوں نے تو I was very impressed, especially کہ جس طرح سے پوزیشنز گورنمنٹ کامرس کالج کے بجائے اب یہ کامرس کا یہ انسٹیٹیوشن دے رہا ہے. تو میں آج وہی دعا پڑھ رہا تھا ادھر بیٹھے ہوئے آپ سب کی باتیں سن کے کہ ایک پودا ان 8 لوگوں نے مل کے لگایا تھا ٹرسٹیز نے, اور آج وہ درخت بن گیا اور 1600 بچے آج اس انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں. اور نہ صرف پڑھ رہے ہیں, یہ انسٹیٹیوشن ٹاپ 5 پوزیشنز دے رہے ہیں آؤٹ آف 10 ان کامرس, پوزیشنز دے رہے ہیں انجینئرنگ میں, پوزیشن دے رہے ہیں میڈیکل میں. تو اصل تو یہی ہے کہ ہم اپنی اگلی جنریشن کو کسی طرح تیار کر سکیں to be in the community of the world, to live and prosper. میں آپ سب سے ایک اور بات بھی آج کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ 1986 کا میں گریجویٹ ہوں, مجھے 38 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے بہت ساری چیزیں میرے بارے میں پڑھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کا حق ادا نہیں کیا. بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ
मैंने तो हक अदा किया है। बिल्कुल हमारे यहाँ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, जैसे शमशाद अख्तर साहबा बैठे हैं, आरिफ हबीब साहब बैठे हैं, हसन तनवीर साहब बैठे हैं, जुनैद साहब बैठे हैं, हशाम साहब बैठे हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारी जनरेशन में ये 38 साल, क्योंकि मैं 20 साल का था जब ये यहाँ से ग्रेजुएट करके गया 1986 में। आज मैं 38 साल के बाद कह रहा हूँ कि हम वी आर ऑल टचिंग 59, कंप्लीटिंग आवर इनिंग्स, मे बी ईयर लेफ्ट। अब शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है, शायद हमें एक्सटेंशन मिल जाए हमारी रिटायरमेंट एज में। लेकिन जो जिंदगी की ये कई सफ़र है, मैं समझता हूँ कि हमारी जनरेशन ने हक नहीं अदा किया। हम दुनिया की उन इकॉनमीज में थे जिनको समझा जा रहा था कि वो दुनिया की 10 बड़ी इकॉनमीज बनेगी। हम दुनिया की 10 बड़ी पॉपुलेशन में तो आ गए इन 38 सालों में। प्रॉब्ली वी आर द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बट शायद हम टॉप 50 इकॉनमीज में भी नहीं है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि शायद हमारी जनरेशन में, असदुल्ला साहब, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, हमने हक नहीं अदा किया। अब उसकी क्या वजह है? हमारे यहाँ कोई भी 25 करोड़ की आबादी हो गई, 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ बिजनेस के मैं कहूँगा तो सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, एक IBA और एक लम्स। उसके अलावा कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं है। हेल्थ केयर में मेड कॉलेजेस में किंग एडवर्ड एंड अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में है। कराची में भी मुझे याद है डाउ मेडिकल कॉलेज था और सिंध मेडिकल कॉलेज था। मुझे कोई नया नाम नहीं पता। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सेटअप हुआ प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन मुझे कोई नया नाम नहीं पता कि कोई यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनी हो। IBA तो 1960 में बन गया था। मेरे फादर ग्रेजुएट हैं 1964 के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के IBA के। कौन सा इस जनरेशन में क्या चीज़ दी है कराची को, मेरा सवाल है। आपके उस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में जब मैं नाम पढ़ रहा था, उसमें सेनेटर जाज के नीचे रजाक तब्बा साहब का भी नाम था, यूनुस ब्रदर्स, वो दोनों क्लास फेलो थे। आरिफ तेली साहब का भी नाम था, उन्होंने ये एक पौधा लगाया। बट मैं ये समझता हूँ कि मैं पहली दफ़ा आया हूँ, हमें एक ख्वाब देख के आज जाना चाहिए, जैसे उन 8 बुजुर्गों ने उस वक्त ये ख्वाब देखा था कि हम कॉमिक्स का कॉलेज बनाए, और आज मैं देख रहा हूँ कि वो 1600 बच्चे इसमें आ गए हैं। इसमें उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा कि हमने तो फाइनल ईयर्स यहाँ से करके गया था। उन्होंने कहा यहाँ अभी हम डिग्री अवॉर्डिंग हमारे पास है, लेकिन हमने क्लासेस शुरू करनी है। तो मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया और मैंने कहा कि आप 1 साल के अंदर यहाँ कॉलेज तैयार करें, ताकि जो बिजनेस की डिग्रीज लें या IT की डिग्री लें, आई रिक्वेस्ट के स्कूल ऑफ बिजनेस एंड IT की बुनियाद आप अगले हफ्ते रखें। मैं वापस आऊँ अगले हफ्ते और उसकी बुनियाद रखें, ताकि 1 साल के अंदर हम स्कूल ऑफ बिजनेस एंड IT यहाँ पे स्टार्ट कर सकें। और जो है वो इसके जो बच्चे 2nd ईयर से चल रहे हैं वो ग्रेजुएट होकर यहाँ से निकलें। मैं तो कॉमर्स कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। बट ख्वाब ये तो बहुत छोटा सा है, तो मैं कह रहा हूँ साल में मुकम्मल करें। ख्वाब तो देखें कि मैं समझता हूँ कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी में आज जितने लोग भी हैं वो शायद वो बॉयज़ हैं कॉमिक्स के जो मेरी एज के हैं, सब कॉमर्स कॉलेज के ही मेरे दोस्त हैं जो इस वक्त हर पोजीशन पे बिजनेस इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं। हमारे पास RFI भी मौजूद हैं, हमसे सीनियर्स भी हैं, हमसे जूनियर्स भी हैं। मैं कहता हूँ कि आज एक ख्वाब देखें यूनिवर्सिटी, और उस ख्वाब को बेस बनाते हुए जो है हम आज फिर 8 ट्रस्टी बने, और 8 ट्रस्टी बन के इस बात का फैसला करें कि हम अगले 5 साल में पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्रिएट करें कराची में। ये वो ख्वाब है जो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अहमद चुनाई साहब
आप इसको 8 लीडर्स को मैं 1 बिलियन रुपीज़ 100 करोड़ रुपीज़ कमिट करता हूँ फॉर दिस यूनिवर्सिटी. आप मुझे पूछेंगे कि why would I do that? This college is a legacy of my father. I want to complete it ताकि ये graduate college बने. But I want my son also to remember that I did also something. And for that I want this university as a legacy. And I am saying that we all from my generation should come up now. And this should be a legacy as a university which after 30 years, when you come in here, you should speak out that yes, there were 8 trustees. And who founded the way we are saying today? We won't be there, we know that. But there were 8 trustees who came here on the 31st foundation day of comics. And there was one of them who was one of those people who had envisioned this comics. On the 31st day, he said, let's now get ready to form the best university of Pakistan in Karachi and let's take it forward. मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी, आज पॉपुलेशन तो है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बने. ये मेरा ख्वाब है. मैं आपके सामने आज ये ख्वाब दोहरा रहा हूँ और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ आज ये सारी बातें करते हुए ये ख्वाब आपने पूरा करना है. हमारी जनरेशन, जैसे मैंने कहा, हम इस ख्वाब को जो हमारे को बताया गया था, हमने वो ख्वाब नहीं पूरा किया. मैं उसकी बुनियाद रख रहा हूँ इस ख्वाब को पूरा करने की. नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक, मैंने उसकी बुनियाद रख दी है. नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक, उसमें हमने पहली चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा को नॉमिनेट किया है आज. हम ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएं जो कि मुल्क अगले, हमारे पास वक्त नहीं है, हम 25 करोड़ की आबादी हैं, हम अगले 10 साल के अंदर हम अपने पैरों पे ना खड़े हों, हम कर्जा देने वाला मुल्क बने. हम आज इस बात की खुशी मनाते हैं कि हमें कर्जा मिल गया और इसलिए मिल गया कि हम पिछला कर्जा वापस कर सकें, कुछ बनाने के लिए नहीं. हम खुशी किस बात की कर रहे हैं कि आज कर्जा मिल गया हमें कि हम पिछला कर्जा वापस कर देंगे, हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे. मैं आपसे ख्वाब देख रहा हूं कि आपने दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनना है आपकी जनरेशन में. मैं ख्वाब ये देख रहा हूं कि हमने 10 साल में हमने कर्जा देने वाला मुल्क बनना है, कर्जा लेने वाला मुल्क नहीं बनना. और उसकी बुनियाद एजुकेशन से आएगी. और एजुकेशन, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई जब मुझे चुनावी साहब ने कहा कि हमारे यहाँ 49% गर्ल्स हैं, 51% बॉयज़ हैं. हमें अपनी बच्चियों को, बेटियों को पढ़ाना होगा. ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, हम एक पहिए के साथ पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता. हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना होगा, हमें अपनी बेटियों को जो है वो एम्पावर करना पड़ेगा. हमारी 50% पॉपुलेशन है, हमें हर जगह पे उनको हिस्सा देना होगा ताकि वो हमारे साथ चलें और चल के ये ना करें कि प्री मेड स्कूल में डॉक्टर बनने के बाद वो प्रैक्टिस ना करें, वो इंजीनियर बनने के बाद प्रैक्टिस ना करें. दे मस्ट कंट्रीब्यूट टू द इकॉनमी. अगर 50% पॉपुलेशन घर बैठ जाएगी तो हमारी इकॉनमी कैसे चलेगी? And that is one major reason women empowerment that Pakistan has been left behind in last 38 years. If we go for gender employment, we will find out कि हमारे पास working women, अगर मैं सामने लेके आऊँ तो शायद रेशियो 90-10 भी नहीं है. शमशाद अख्तर साहब, आज हमारे पास वर्किंग मेन टू वर्किंग वुमेन का रेशियो 90-10 भी नहीं है. So we need to work on this economic policy, business development think tank, and skill development of our people. जैसे कहा कि हमारे 60% से जो है वो ज़्यादा लोग यूथ हैं, 30 साल से कम है. We need to develop skills. We are losing our jobs abroad because we are not able to compete with them.
Hashan is there. I continue to tell them he's a top Ivy League university master. So I continue to tell them that they need to open up IT parks. They are graduates of IT from the top university. Create environment. हम एक भी हमारे मुल्क में IT हाउस $1 बिलियन का क्रिएट नहीं कर सके. IT मार्केट तो 2000 में खुल गई थी. हम 24 साल में हम कहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट IT की कमाल हो गया, $4 बिलियन की. हमारे 7 बॉर्डर के हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसमें एक एक कंपनी की जो है टर्नओवर 20-25 बिलियन है. एक एक कंपनी की. हम पाकिस्तान में बोल रहे हैं हमारी कमाल कर दिया, हमने $4 बिलियन की टर्नओवर. हम अपने मुल्क में कह रहे हैं कमाल हो गया, हमने 76 सालों में हमारा मुल्क $30 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है. आई रिपीट अगेन, 25 करोड़ की आबादी, हम $30 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं. $30 बिलियन में जो ब्रेकअप है वो $17.5 बिलियन सिर्फ टेक्सटाइल करती है, विच इज क्लोज टू 60%. $5 बिलियन करती थी एग्रीकल्चर, और $5 बिलियन तमाम पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग मिलके 5 की एक्सपोर्ट करती थी. जब हमने $27.5 बिलियन पे पिछले साल हमें कहा गया केयर टेकर में. अब बिजली की कीमतों की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो ग्रो नहीं कर सकता. हमारे यहाँ बिजली 16 सेंट है, पहले रीजन में 7 सेंट है. शमशाद साहब मेरी चेयरमैन ECC मौजूद है. कोई ऐसी मीटिंग नहीं है SIFC की, कोई ऐसी मीटिंग नहीं है ESC की, ECC की, कोई कैबिनेट की जहां मैंने बिजली की कीमतों की बात ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ माई मिनिस्ट्री ना किया. और मैंने कहा पाकिस्तान को होस्टेज बना दिया, और पाकिस्तान होस्टेज है. ना हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चल रहा है, ना एग्रीकल्चर सेक्टर चल रहा है. डोमेस्टिक सेक्टर सारा तड़प रहा है 80 रुपए यूनिट का बिजली का बिल देके. कमर्शियल सेक्टर तड़प रहा है 80 रुपए का बिजली का बिल देके. ये नहीं चल सकता. ये मैंने हर कैबिनेट में मुझसे सवाल पूछते हैं, जब आप मिनिस्टर थे तब क्यों नहीं सवाल. मैंने हर कैबिनेट में, हर ECC में, हर SIFC में यही सवाल उठाया. मुझे उसका जो जवाब था वो जवाब इतना मुश्किल था कि मुझे 1 जुलाई को जहाद के लिए निकलना पड़ा. मैं फिर वो लफ्ज़ कह रहा हूँ, मुझे जहाद के लिए निकलना पड़ा कि 40 IPP फैमिलीज हैं और 25 करोड़ का पाकिस्तान है. 40 IPP फैमिलीज सालाना $2 ट्रिलियन रुपए कैपेसिटी चार्ज ले रहे हैं, और जो बिजली बना रहे हैं वो 40% भी नहीं बना रहे. तो मेरे हिसाब से उनको सिर्फ $800 बिलियन मिलना चाहिए. 40% जितनी बिजली बना रहे हैं उसकी किस वजह से ले रहे हैं जो बिजली ही नहीं बना रहे. वो कहते हैं हमारा हुकूमत के साथ मुआहिदा है कि हम बनाए ना बनाए हमें पैसे मिलने चाहिए. तो मुआहिदा मैंने आरिफ भाई से गाइडेंस दी कल फोन के ऊपर. मैंने कहा, आरिफ भाई ने भी यही कहा कि मुआहिदा है, हुकूमत को मुआहिदा ऑनर करना चाहिए. मैंने कहा आरिफ हबीब साहब, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े कैपिटल मार्केट के हमारे लीडर हैं, मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे मुआहिदा करूं और मैं अपनी टर्म्स ऑनर ही ना करूं और आपको बोलूं कि आपने टर्म ऑनर करनी है, क्या ऐसा कोई मुआहिदा होता है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई मुआहिदा नहीं होता. ये IPP माहिदे कोई मुआहिदा नहीं है, क्योंकि किसी ने भी IPP ओनर्स ने अपनी टर्म ही मीट नहीं की. ना उन्होंने पैसे लगाए, ना उन्होंने ईमानदारी से एफिशिएंसीज डिक्लेयर की, ना उन्होंने ईमानदारी से अपनी जो है कैपेसिटीज को चलाया, ना उन्होंने हिस्सा डाला, और असल बात उसको ओवर इनवॉइस करके अपनी इक्विटी भी नहीं डाली. तो जब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो मैंने तो सिर्फ एक बात डिमांड की, फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं और उनको रिक्वेस्ट कर लें कि आज भी अगर चलना चाहते हैं तो जो माल बेचते हैं उसके पैसे ले लें. मुझे तो कभी याद नहीं कि किसी ने बिस्किट आपको बेचा हो इस अपनी कैफेटेरिया में और उसके साथ आपको बिस्किट के पैकेट के 20 रुपए के साथ बोले कि 5000 रुपये और दे दो, जो मेरी कैपेसिटी बंद है उसके भी पैसे आपने देने. कभी आपने ऐसे सुना है कि 20 रुपए का बिस्किट का पैकेट और साथ मांगे कि ये बिस्किट का पैकेट देना है 5000 रुपये, और साथ बोले कि ये 5000 नहीं दोगे तो ये हुकूमत पाकिस्तान है, तुम्हारे पे हम पर्चा काट देंगे कि तुम बिजली चोर हो. क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का काम कारोबार करना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ. एंड दिस इज व्हाट इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक विल टेक इट फॉरवर्ड कि हुकूमत का काम नहीं है. इतने कर्जे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खत्म हो गए. मैंने और शमशाद अख्तर साहिबा ने कैबिनेट में जब उसको देखा तो 75,000
और रुपए तो हमने सबने सुने हुए हैं, आप सबने 75,000 रुपए सुने हुए हैं। 75,000 करोड़ का घाटा कर चुकी थी, 75,000 करोड़, और कोई पूछने वाला नहीं था। हमने कहा तुमसे कारोबार नहीं होता भाई, बंद कर दो, इसको बेच दो। और आज आईपीपी सेक्टर क्या बोल रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान यहां पे 1,20,000 करोड़ का घाटा करके फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांगती है कि मुझे घाटा हो गया। दुनिया की सबसे महंगी बिजली बेच के 80 रुपए की, वो उसके बाद पाकिस्तान के पास आते हैं कि 1,20,000 करोड़ रुपए मुझे सब्सिडी और दे दो, मुझे घाटा हो गया। ये पाकिस्तान का पावर एनर्जी सेक्टर है। तो अगर मैंने आवाज इस जहाज में निकला हूं तो ये जहाज सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सामनियत, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, कि हमें पाकिस्तान को सही कदमों पे चलाना होगा। आज मैंने तो सिर्फ 7 महीने कॉमर्स मिनिस्टर के तौर पे काम किया। अब मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे मैंने कहा, 17.5 बिलियन टेक्सटाइल थी और $5 बिलियन हमारे पास जो है वो अदर मैन्युफैक्चरिंग थी एक्सपोर्ट में से, 27.5 में से। तो इसका मतलब है मेरे पास सिर्फ 25% था। मुझे शमशाद अख्तर साहिबा बोलती थी कि तुम एक्सपोर्ट बढ़ाओ, मेरे को डॉलर चाहिए। तो मेरे पास क्या था सिर्फ हाथ में? एग्रीकल्चर। $5 बिलियन की हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट थी, सिर्फ एग्रीकल्चर थी। उस एग्रीकल्चर से सिर्फ हमने मुल्क की एक्सपोर्ट 60% उस एग्रीकल्चर में बढ़ा के $3 बिलियन, मुल्क की एक्सपोर्ट को 10% ग्रो कराया लास्ट ईयर। 10% ग्रोथ 27.5 से 30.5 कुछ भी नहीं है। बट अगर हम सिर्फ ये 10% ग्रोथ सिर्फ 10 साल कर लें ईयर ऑन ईयर, पिछले साल हम मैन्युफैक्चरिंग में बिजली की वजह से नहीं कर सकते थे, जो इंशाल्लाह अगले साल में हम कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ 10% ग्रोथ आप कैलकुलेट कर लीजिएगा ईयर ऑन ईयर 10% ग्रोथ, तो ये $30 बिलियन का मतलब होगा। अगर 10 साल में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर दी तो हम $80 बिलियन पे खड़े होंगे 10 साल के बाद। तो जो मैं कह रहा हूं कि हम 10 साल बाद सिर्फ 10% ग्रोथ कर लें ईयर ऑन ईयर, हम कर्जा देने वाला मुल्क होंगे, कर्जा लेने वाला नहीं। और ये पिछले साल बुनियाद रखती कि जब 10% ग्रोथ थी, सिर्फ 10% ग्रोथ थी। और हमारा उस 10% ग्रोथ में मैं कह रहा हूं कि 75% सेक्टर तो कंपीट ही नहीं कर सक रहा था, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल। सिर्फ हमारे पास उसके बावजूद जब नियत बनी तो मेरी जो है फाइनेंस मिनिस्टर बहुत सख्त थी, बहुत डांटती थी, कहती थी एक्सपोर्ट बढ़ा के लाओ। तो हमने $500 मिलियन महीने की एक्सपोर्ट फिगर्स चेक कर लीजिएगा, सितंबर ऑनवर्ड्स टिल मार्च हर महीने $500 मिलियन की हमने एक्सपोर्ट बढ़ा के दी। बट इट वॉज टीम वर्क।